بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہوتا کیا ہے. واٹ از دا میننگ آف شیطان؟ کیا مطلب ہے شیطان کا؟ شیطان کا مطلب یہ ہے وہ محلوق، وہ ذات، وہ چیز جو اپنی حدود کو جان بوجھ کر پہچان کے اور کسی چیز کو پہچان رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور جان بوجھ کے ولنگلی ان حدود کو کراس کرتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے. جو بندہ جان بوجھ کے اس کو پتا ہے یہ غلط ہے پھر بھی وہ غلط کرتا ہے، اس کو پہچان ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی وہ غلط کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ کام مجھے میرے رب سے دور کر دے گا پھر بھی وہ کام کرتا ہے، تو وہ شیطان ہے. یہ ڈیفینیشن ہے شیطان کی کہ جو جان بوجھ کے، جو پہچانتے ہوئے کسی چیز کو سمجھتے ہوئے کہ یہ خرابی ہے اور پھر بھی وہ اس کا ارتکاب کرے تو وہ شیطان ہے. شیطان شیطان کب کہلایا گیا تھا؟ جب اس کو پتا تھا میرے رب کا یہ حکم ہے اور میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی. اس کو سب پتا تھا، وہ تو بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اتنا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی اس نے حد کو کراس کیا. اتنا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے رب کی نہیں مانی تو وہ شیطان کہلایا گیا. ٹھیک ہے. شیطان کوئی کب بنتا ہے؟ جب وہ علم والا ہونے کے باوجود وہ کرے جو اس کا دل کرتا ہے. شیطان وہ ہوتا ہے. اور مائک بند نہیں ہو رہا. شیطان دو طرح کے ہیں. شیطان دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ شیطان ہے نا جو اصل میں شیطان ہے، اور ایک ہم بھی شیطان ہے. ٹھیک ہے. ایک ہم بھی شیطان ہے. اس میں یہ نہیں سوچنا میری ساس شیطان ہے، اس میں یہ نہیں سوچنا میری نند شیطان ہے، میری بہن شیطان ہے، میرا پڑوسی شیطان ہے. پڑوسی کلاس نہیں لے رہا، ساس کلاس نہیں لے رہی، آپ لے رہی ہیں. ٹھیک ہے. شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جن کو انسان استعمال کرتے ہیں اور آسمانوں تک معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے پیروں کے پاس چلے جاؤ، جیسے غلط طریقوں سے فیوچر جاننے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ شیطان کے راستے پہ چلو، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے. دوسرا وہ دوسرا وہ شیطان ہے. شیطان دو طرح کے ہیں نا. ایک تو وہ جو کہ انسانوں سے ایسا علم یوز کر کے وہ مائک بند کرے پلیز کے تو آگے لوگوں کے لیے جو ہے کچھ کو عذاب. مائک کھل گیا. علم یوز کرتا ہے جو کہ علم لے کے وہ کرتا ہے اور لوگوں کی زندگی کو مشکلات میں بھی ڈالتا ہے اور غلط طریقے استعمال کرتا ہے. ایک انسان بھی شیطان ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے؟ کہیں آپ شیطان تو نہیں ہے اپنی زندگی میں؟ کہیں آپ کی وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا؟ کہیں آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی تنگ تو نہیں ہو رہی؟ شیطان جو کام کرتا ہے کہیں آپ وہ تو نہیں کر رہی کسی کے لیے؟ کسی کا مذاق تو نہیں اڑا رہی؟ کسی کو ڈی موٹیویٹ تو نہیں کر رہی؟ کسی کا کسی کا راستہ تو نہیں روک رہی؟ کہیں آپ بھی تو یہ کام نہیں کر رہی؟ آپ تو نہیں کسی کو کہتی ہیں کہ آؤ تمہارا مستقبل تمہیں بتاتی ہوں میں، تمہارے مستقبل میں کیا ہوگا. کہیں شیطان جو کام کرتا ہے، غرور، تکبر، کہیں وہ آپ کے اندر تو نہیں ہے؟ آپ نے سوچنا ہے کہیں آپ اپنی زندگی کا یا کسی اور انسان کی زندگی کا شیطان تو نہیں بنی ہوئی؟ کہیں آپ شیطانوں کے گرد تو نہیں رہتی؟ مثال، آپ نے ایسے دوست بنا رکھے ہیں جو اللہ سے دور ہیں اور شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور وہ آپ کے دوست ہیں، وہ فیوچر میں آپ کو بھی شیطانی بنا دیں گے. ٹھیک ہے. وہ فیوچر میں آپ کو بھی ویسا ہی بنا دیں گے. آپ کے ارد گرد، آپ کے آس پاس کے لوگ ایسے تو نہیں ہیں جن سے آپ دور جا سکتی ہیں، مطلب ان سے ہٹ سکتی ہیں، دوستیں ہو جاتی ہیں، کچھ کولیگز ہو جاتے ہیں جن سے آپ کی دوستی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں. آپ ان سے دور ہٹ جائیں، یا تو انہیں اللہ کے قریب کر دیں یا خود ان سے دور ہو جائیں، ورنہ وہ آپ کے دین کو بھی بدل دیں گے. ٹھیک ہے. ایسا انسان جو دوسرے کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے، اس انسان کو اللہ بہت سخت پوچھیں گے، بہت سخت پوچھیں گے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کسی کی زندگی کا شیطان تو نہیں بن رہی، کہیں آپ اپنی زندگی کا شیطان تو نہیں بنی ہوئی، اپنی زندگی کو خراب تو نہیں کر رہی، اپنے وقت کو ضائع تو نہیں کر رہی، غرور تو نہیں کر رہی، تکبر تو نہیں کر رہی کہیں آپ.
कहीं आप किसी दूसरे इंसान के लिए जिंदगी को तंग तो नहीं कर रही। शैतान जब आप पे हावी होता है आपका सीना बंद होना शुरू हो जाता है। शैतान जब आप पे हावी होता है तो आप गाने सुनते हो और गाने सुनने के बाद आपको मजीद बेसुकूनी हो जाती है। जिन लोगों की जिंदगियों का भी आप एनालिसिस करो जो कि अल्लाह से दूर हैं, बेज़ाहिर वो खुश लेकिन अंदर से उदास नजर आते हैं। बेज़ाहिर वो बहुत चमकती दमकती इस दुनिया के अंदर रह रहे होते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो बहुत वीक ईमानी तौर पे होते हैं और बहुत नाखुश होते हैं। उनके दिलों को, उनकी खुशियों को, उनके सुकून को अल्लाह ने जकड़ लिया होता है, क्योंकि वो शैतान के रास्ते पे चल रहे होते हैं। शैतान जहाँ आता है वहां सीने बंद होना शुरू हो जाते हैं, वहां हिकमत समझ नहीं आती। शैतान जहाँ आता है वहां आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, वहां सामने बुराई नजर नहीं आती। आपने एक बात सोचनी है, कहीं आपकी वजह से किसी का सीना तो नहीं बंद हो रहा, कहीं आपकी बातों की वजह से किसी के हलक से खाना तो नहीं रुक रहा जो नीचे नहीं जा रहा, कहीं आपके कामों की वजह से कोई रातों को रो तो नहीं रहा, कहीं आपके जुबान और आपके गलत अल्फाज की वजह से कोई इंसान अपने दिल ही दिल में कुढ़ तो नहीं रहा। मैंने आपके अंदर एक सिग्नल जगाया है कि आप अपनी जुबान पे देखें, गौर करें, कहीं आपके शैतानी अमाल की वजह से लोगों की जिंदगियां बेसुकून तो नहीं हुई। फोकस करें इस पे। अगर किसी की वजह से आपकी जिंदगी ऐसी होती है तो उसके लिए दुआ करें, उसके लिए दुआ करें। और अगर आप किसी की कर रही हैं तो रुक जाएं, अभी रुक जाएं, ये बहुत बुरा अमल है। अच्छा, नेक्स्ट 4 पॉइंट जो क्लासिकल स्कॉलर्स इसका बयान करते हैं, वो कहते हैं कि आप आसमान को देखें और आप सितारों को देखें। एक तो सितारे, एक चीज एक है लेकिन काम इससे डबल लिया जा रहा है। चीज सितारे हैं जो कि डेकोरेशन भी कर रहे हैं, आसमान को ब्यूटीफाई भी कर रहे हैं, और ये शैतानों को मारने के काम भी आ रहे हैं। इसमें बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने कहा, कहते हैं एक ही चीज है जो नेमत भी होती है और जो लानत भी होती है। हजम करें इस बात को, एक ही चीज होती है और वो नेमत भी होती है और वो लानत भी बन जाती है। अब एक चीज को नेमत या लानत कौन सी चीज बनाती है, बताएं, आंसर देना है। चीज नेमत भी होती है और लानत भी होती है, दोनों फैक्टर्स उसके अंदर होते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसे क्या बनाते हैं। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है। इंसान के लिए ये सितारे ब्यूटिफिकेशन का काम करते हैं, नेविगेशन का काम करते हैं, और जिन्नात के लिए ये रजम का काम करते हैं, ये उन्हें मारे जाते हैं। कब मारे जाते हैं? जब वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तब उन्हें यही यही नेमत जो इंसानों के लिए नेमत है, यही जिन्नात के लिए लानत बन जाती है। आप भी अपने आप पे गौर करें। आपका हर अमल, आपकी हर बात, आपकी हर चीज, आप अभी जो वक्त गुजार हैं, जो जवानी है, जो नेमतें आपको लगती हैं, वो अगर आप कहती हैं ना मेरी जिंदगी में ये तो लानत है, ये तो बदनसीबी है, वो बदनसीबी नहीं थी, आपने उसे बदनसीबी बनाया था, इसलिए वो बदनसीबी बनी थी। हम कसूर डाल देते हैं अल्लाह पे, हम कसूर डाल देते हैं तकदीर पे, हम कसूर डालते हैं किस्मत पे। ठीक हम कब हो सकते हैं? जब हम अपनी गलती को तलाश करें अंदर से। कोई चीज बदनसीबी नहीं होती, कोई चीज आपकी तकदीर बुरी नहीं होती, आप खुद होते हैं जो उसको अच्छा और बुरा बनाने वाले होते हैं। ठीक है, खुद होते हैं आप। वो उस चीज में दोनों एलिमेंट थे, आपने उसको क्या बनाया ये आप पे डिपेंड करता है। आपका, आज आपको जवानी दी गई है ना, और ये आपकी नेमत है, ये लानत भी बन जाएगी कयामत के दिन, जब आप, अल्लाह ना करे, लेकिन किसी ने बहुत गुनाह किए हैं और यही जो नेमत उसको अभी दुनिया में नेमत है, तो यही जवानी, यही गुनाहों वाली जिंदगी उसके लिए लानत बन जाएगी, उसको जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाएगी। यही फ्री टाइम जो आज आप जाया कर रही हैं, यही कल को आपके लिए लानत बन जाएगा। अभी तो नेमत है, आपने अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, आपने इसका फायदा नहीं उठाया, ये लानत बन जाएगा। ठीक है, यही आपकी जुबान जो नेमत है जिससे बोल रही हैं, यही लानत बनती है, यही आप पे लानत बन जाती है जब आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं।
آپ کا دماغ جو کہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، نعمت ہے، لیکن جب یہ دماغ نہیں لگ رہا اللہ کے کاموں میں، جب یہ دماغ ساری ساری رات نامحرم سے باتیں کرنے میں لگ رہا ہے، جب یہ دماغ غلط چیزوں میں لگ رہا ہے، تو لعنت بن جاتا ہے. جیسے موبائل ویری گڈ نعمت ہے، لیکن لعنت بن جاتا ہے جب اس کا واٹس ایپ کا غلط یوز ہوتا ہے، یوٹیوب کا غلط یوز ہوتا ہے، غلط چیزوں کی طرف اپروچ کیا جاتا ہے. مجھے ایک چیز بڑی گہری فیل ہو رہی ہے، اس دنیا کے اندر نا ایک ہی چیز ہے، بس بس ایک ہی چیز ہے، چوائس. چوائس. آپ کا جو فیصلہ ہے نا وہ آپ کی چوائس پہ ہوگا. بس آپ کا فیصلہ آپ کی چوائس پہ ہوگا کہ آپ نے کیا چوز کیا ہے. جو آپ چوز کریں گے نا وہ آپ کو ملے گا. آج آپ مصروفیت چوز کریں گے، آج آپ وقت کو ضائع کرنا چوز کریں گے، آج آپ غلط راستے چوز کریں گے، تو آپ کا کل غلط ہوگا. اگر آج آپ غلط ہوں گی تو کل کو اولادیں غلط ہوں گی. آج آپ غلط راستہ چوز کریں گے تو کل کو آپ کے ساتھ غلط ہوگا. سب غلط ہوگا کل کو اگر آج غلط چیز چوز کی تو. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، تقدیر بری نہیں ہوتی، نصیب برے نہیں ہوتے، ہماری چوائس بری ہوتی ہے. اب کسی کا سوال آ سکتا ہے اس کیسے کیسے ہماری چوائس بری ہو سکتی ہے؟ مطلب ہم نے تو چوز نہیں کیا اس انسان کو، لیکن وہ ہماری تقدیر بنا اور پھر خرابی ہو گئی. پتا کیسے؟ ہمیشہ نا لوگ میرے سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن نا ہمیشہ 100% قصور ایک سائڈ کا نہیں ہوتا. 100% قصور ایک سائڈ کا نہیں ہوتا. 100 ادھر سے ہے تو 70 ادھر سے ہے، 30 آپ کی طرف سے ہے. اور اگر وہ 30 آپ کی طرف سے نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے حالات کچھ اور ہوتے. ہو سکتا ہے حالات کچھ اور ہوتے. لیکن اگر پھر بھی فرض کریں، مثال دے رہی ہوں میں، ایک شادی ہوتی ہے اور اس شادی کے اندر جو ہسبینڈ ہے وہ ایکسٹرا افیئرز رکھتا ہے. اب لڑکی کہے کہ اس کے تو افیئرز پہلے سے تھے، میرا کیا اس میں قصور ہے کہ میرے نصیب اس کے ساتھ ملے؟ ہو سکتا ہے نا سوال یہ، میرا کیا قصور ہے؟ اب میں تو کچھ نہیں غلط کر رہی لیکن وہی غلط کر رہا ہے. ادھر بھی آپ کا رول ہے. اگر فرض کریں آپ اس انسان کو کچھ سالوں بعد چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں میرا نصیب برا کہ مجھے اس بندے وہ بندہ تو شادی سے پہلے ہی ایسی افیئرز رکھتا تھا، تو شادی سے پہلے اس کو یہ بری عادتیں تھیں، تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مجھے طلاق ہوئی، میرے نصیب برے. اس میں آپ کا رول ہے. جو آپ کا رشتہ خراب ہوا یہ آپ کا رول ہے. کیا رول ہے؟ آپ کے پاس ایک بندہ تھا، آپ کو اللہ نے ایک انسان دیا تھا، حلال رشتے میں دیا تھا. اس سے پہلے، آپ کی شادی سے پہلے اگرچہ اس کے کروڑ خراب رشتے تھے، شادی کے بعد اللہ نے آپ کو جائز ایک رشتہ دیا ہے، آپ کو سمجھ دی ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ کو حکمت دی ہے، آپ کو قرآن دیا ہے، آپ کو دین اسلام دیا ہے. اگر آپ ایک مسلمان عورت ہو کر بھی اپنے عمل کو ایسا نہیں بنا سکیں کہ اس بندے کو یہ بتا سکیں کہ زنا حرام ہے، زنا ناجائز ہے، وہ نہیں کرنا، اپنے عمل سے اس کو اللہ کے قریب نہیں کر سکی، تو آپ کا قصور ہے. آپ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہیں اس رشتے کے خراب ہونے کے جتنا وہ ہے. ہم عورتوں میں بڑا ہی مسئلہ ہے، بڑا ہی مسئلہ ہے. رونا پیٹنا ڈال کے کبھی بچوں کو قصوروار ٹھہرا دیتی ہیں، کبھی شوہر کو ٹھہرا دیتی ہیں، کبھی دوسرے بندے کو ٹھہرا دیتی ہیں. مطلب ہمیں نا ایک چیز، ہمیں بڑا، میں اپنی بھی بات اندر ہی کروں گی، ہمارے اندر ایک بڑی زیادہ چیز ہے، بلیمنگ سسٹم. کبھی والدین پہ ڈال دو، کبھی گھر والوں پہ ڈال دو، کبھی اس پہ ڈال دو، کبھی تیسرے پہ ڈال دو، کبھی پڑوسی پہ ڈال دو، کبھی شوہر پہ ڈال دو، کبھی اولاد پہ ڈال دو، اور خود بچ جو ہائے ہائے مجھ پہ تو ظلم ہو گیا، میں تو مر گئی، لٹ گئی، مجھے تو چھوڑا ہی نہیں کسی ناطے کا. اوئے خدا کا نام ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ ٹھیک ہوں تو. اگر آپ کی طرف سے، اگر ایک طرف سے 100% برائی ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے 80% اچھائی ہو نا، تو وہ اچھائی اس 100% برائی کو توڑ سکتی ہے. اب میں ایک اور مثال دیتی ہوں. کچھ لوگ کہیں گے مس ہمارے تو سسرال والے بڑے برے، بڑی بری چیزیں ہیں ان میں، اب رشتہ خراب ہو رہا ہے، تو میں کیسے بچاؤں؟ میں تو اپنی بڑی کوشش کر رہی ہوں.
क्या आप हिकमत से कोशिश कर रही हैं? आप क्या कोशिश कर रही हैं? आप क्या कोशिश कर रही हैं? चीखना कोशिश कर रही हैं? चीख रही हैं लोगों के ऊपर, गुस्सा कर रही हैं, या नेकियों में आगे बढ़ के अगलों को दीन की तरफ ला रही हैं? आप क्या कोशिश कर रही हैं? सुबह शाम जीना हराम आपने भी उनका किया हुआ है, उतनी बातें सुना रही हैं आगे से। मतलब जिस बंदे को ये लगता है ना कि उसका इस मामले में कसूर नहीं था, वो मुझे पर्सनल में मैसेज करे और अपना मामला बताए, मैं उसको कसूर बताऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी तरफ से आप 100% उसका कसूर बना दें और अपनी तरफ से आप दूर के धुले रहें। ठीक है, आपका कसूर है, आप माने आपका कसूर है, और जिंदगी तभी बेहतर होगी जब आप अपना कसूर समझेंगे। तो आपकी चॉइस आपका मुस्तकबिल बनाती है, लिख लें इस बात को। अगर आज आपकी तकदीर आपको लगता है खराब है, तो तकदीर का कसूर नहीं है, आपने किसी लम्हों में गलत चूज किया होगा कुछ, उसका कसूर है, उसका कसूर है। ठीक है, अच्छा जी। अस्सईर उस शोले को कहा जाता है जो मुसलसल बढ़ रहा है। आप कोई भी आग जलाते हो, अगर आप उसके अंदर मजीद लकड़ियां नहीं डालोगे तो वो आग जो है वो मजीद आगे नहीं चलेगी, और वो एट द एंड उसका फ्लेम लो होता 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 स्टॉप हो जाएगा। अल्लाह ताला की जहन्नुम इतनी शदीद है कि उसमें जो शोले हैं वो कम नहीं होंगे, वो कम नहीं होंगे, वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और असाइर में आग के उस शोले की बात की जा रही है जो मुसलसल बढ़ रहा है। अल्लाह ताला ने कहा नाफरमान लोगों को, ऐसे लोग जिन्होंने शैतान की बात मानी। अल्लाह ने कुरान में खुलम खुला कह दिया है, वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐसा दुश्मन है जिससे, जिसके तुम कॉन्टिन्यूसली जिसकी बात मान रही हो और तुम्हें पता है कि वो गलत है, तुम्हें पता है वो हराम है, तुम्हें पता है वो तुम्हें भटका रहा है, लेकिन तुम शैतान की बात मानने चली जा रही हो। ठीक है, ऐसे तमाम लोग जो शैतान के रास्ते पे चलते हैं, जो शैतान की बात मानते हैं, जो शैतान के की बात सुन के लोगों की घरों को तबाह करते हैं, लोगों की जिंदगियों को तबाह करते हैं, जो किसी ना किसी तरह से शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं, उनके लिए ऐसा अजाब है जो जिसका शोला मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, जो कम कभी भी नहीं होगा। अब ये आग दो महलूकात के लिए है, एक तो इंसानों के लिए और एक जिन्नात के लिए। अब आप एक एक चीज आप ऑब्जर्व करें, जहन्नुम है जो बजाते खुद आग है, हदीस में आता है कि जहन्नुम को 1000 साल तक जलाया गया। इसकी आग पहले सफेद थी, 1000 साल तक इसको जलाया गया तो ये ब्राउन कलर की हो गई, ब्राउन कलर की हो गई। फिर इसे 1000 साल तक जलाया गया तो फिर इसका कलर काला हो गया, काला, काले रंग की है अब आग, स्याह काले रंग की, ब्लैकिश कलर की है आग। अब ऐसी आग है जो काले रंग की है, और जहन्नुम भी काले आग की वजह से काली ही है सारी की सारी। और उसमें जगह जगह ऐसे जानवर छुपे हुए हैं जो एकदम से जहन्नुमियों का, जैसे किसी बंदे का कहते हैं कि तरह निकाल देना, एकदम से सामने आ जाना। ऐसे जहन्नुम के अंदर जो जानवर खतरनाक हैं, जो है ना, उनका जैसे एकदम से किसी चीज को डराया नहीं जाता, ऐसे डराएंगे। और ये कुरान हमें बताता है, हमने एक क्लास ऐसी रखी थी, आई थिंक सूरतुल मुल्क, सूरतुल रहमान के अंदर थी। तो वो उन्हें डराएंगे, एकदम से आके दबोच लेंगे, एकदम से आके पकड़ लेंगे, चीखें। मतलब आप जहन्नुम इस तरह की है, इतनी शदीद है कि उसमें एक तो खतरनाक आवाजें हैं, खतरनाक आवाजें हैं, खतरनाक जानवर है, काली कोठरी है, खतरनाक आग है जो कि बहुत शदीद है। और आप इर्द गिर्द के लोग आपके जैसे शैतान है, इर्द गिर्द के लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मैं जहन्नुम में आया हूँ, तुम्हारी वजह से मैं जहन्नुम में आया हूँ। सारे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और कोई किसी को बचा नहीं पा रहा। ऊपर से खाना इतना खतरनाक है, पानी इतना खतरनाक है, और ऊपर से ऐसे हालात ऐसे हैं कि आपके बचने का इम्कान ही कोई नहीं है। एंड लाइफ है वहां पे, कोई आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी, ना अजाब खत्म होगा। ठीक है, और उसमें दो महलूकात को डाला जा रहा है जो कि इंसान है और जिन्नात है। आप मुझे बताएं, आपसे नहीं होता ना गुस्सा कंट्रोल, ना करें। आपसे नहीं होता सब्र, ना करें। आपसे नहीं, जो है ना, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से अपने हाथ को रोका जाता तो नहीं रोके। जो दिल करता है ना, अभी अगर करना है तो कर लें। ठीक है, अल्लाह ने आपको खुलम खुला इस कायनात के अंदर भेजा है, आपको सही भी बता दिया, आपको गलत भी बता दिया, आपको बता दिया सजा भी ये है, आपको बता दिया जजा ये है, आपको एक मैदान में अब छोड़ दिया
चॉइस आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करती हैं, आप किस रास्ते पे चलती हैं। जिस रास्ते पे आप चलेंगे अल्टीमेटली आपका रिजल्ट जो निकलेगा वो उसी रास्ते वाला होगा। अब आप ये ब्लेम करने वाली नहीं है कि अल्लाह मेरे पास पैगाम नहीं पहुंचा था, अल्लाह मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, अल्लाह मुझे तो पता नहीं था जहन्नम इतनी शदीद है, हाय मुझे पता होता तो मैं पहले ऐसे ही हो जाती। आप ये कहने वाले नहीं है। अब बस इसके बाद हम जो चूज करें, हमसे नहीं ना होता सबर, ना करें सबर। कल को बेसब्रों का जैसा हाल होगा आपका भी फिर वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। तो जो आपसे अभी हमसे अपने जज्बात कंट्रोल नहीं होते, जब दिल करता है मुंह फट के बोल देते हैं, जब दिल करता है, मतलब ये जो दुनिया ये जो जिंदगी हमें दी गई है इसको इतना हमने इतना फॉर फॉर ग्रांटेड क्यों लिया हुआ है कि भाई हाँ जिंदगी है ठीक है गुजार लो, बस हर दिन गुजरे बस जाने दो। तो बेटा जब आप जाने दोगे ना तो फिर कल को भी जाने ही दोगे। फिर कल आपको कोई ना अजाब खत्म होगा ना उसकी कोई एंड लिमिट होगी, ना आप ये कहने वाले होगे कि मुझे क्यों अब इसमें डाला जा रहा है। आप खुद अपने गुनाहों के गवाह होंगे, आप खुद गवाही देंगे कि मैंने ये किया है, आपका जिस्म गवाही देगा, आपके हाथ पैर आपके कान गवाही देंगे, आपकी आंखें गवाही देंगी। ठीक है। तो ये जो आग है इसमें दो तरह के लोग डाले जा रहे हैं, इंसान और जिन्नात। अब बड़ी मुझे यहाँ पे एक हैरान कन बात लगी जो इन साइंस कहती है इंसान का जो जिस्म है वो जरा ज्यादा ज्यादातर बॉडी इंसान की वो पानी से मिलके बनी हुई है, पानी है उसमें। अब 70% पानी से इंसानी बॉडी बनी हुई है। और जब मुझे एक बात बताएं, इंसान का जिस्म 70% पानी से बना हुआ है, तो क्या इंसान जब आग में जाएगा तो आग बुझ जाएगी? आग पे पानी डाल दे तो आग बुझ जाती है ना। इंसानी जिस्म वो जहन्नुम की आग इतनी शदीद है कि जब इंसानी जिस्म को उसमें डाला जाएगा ना, जिन्नात और इंसानों को डाला जाएगा, तो इंसानों के डालने की वजह से जब पानी उसको जाके आग को पकड़ेगा और बुझाने की कोशिश करेगा तो पानी जितना भी ज्यादा होता है ना, इंसान जितने भी ज्यादा वहां पे चले जाए आग के अंदर, फिर भी आग की तपश ज्यादा है। जब आग लगी होती है किसी फैक्ट्री के अंदर तो कितनी गाड़ियां आती हैं और कितना अरसा लगता है, कितना टाइम लगता है, दिन लगते हैं अगर बहुत ज्यादा लगी हुई है उस आग को बुझाने के अंदर, क्योंकि वो आग ज्यादा होती है। ठीक है। सोचें कि इंसान जिसका जिस्म 70% पानी से बना है, फिर भी जब वो आग में जाएगा तो आग कम होने की बजाय ज्यादा हो जाएगी, आग मजीद भड़केगी, मजीद भड़केगी। 70% पानी इंसानी जिस्म के अंदर है और बहुत ज्यादा तादाद में जब लोग उसमें डाले जा रहे हैं तो आग को तो कम हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें हमें ना अल्लाह ताला एक चीज बता रहे हैं, उस आग के बारे में जरा मजीद गहराई बता रहे हैं कि इतने ज्यादा इंसान जाने के बावजूद वो आग का शोला इतनी शिद्दत से बढ़ रहा है, असरीर इतनी शिद्दत से बढ़ रहा है कि इंसानों का बहुत ज्यादा तादाद में उसके अंदर जाना जहन्नम के अंदर उस शोले को कम नहीं कर रहा बल्कि मजीद बढ़ा रहा है। मजीद मसलसल वो शोला आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, मजीद बढ़ रहा है, मजीद बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, शिद्दत उसकी बढ़ रही है ज्यादा। इंसान जू जू अंदर जा रहे हैं, जू जू इंसान ज्यादा हो रहे हैं, जू तो आग बढ़ती चली जा रही है। दूसरी चीज, दूसरी में लोग जिन्नात, जिन्नात तो बने ही आग से। और जब आग वाली चीज को आग में डाला जाएगा तो आग कम होगी या धमाका होगा? धमाका होगा। तो जब आग में जिन्नात को डाला जाएगा तो एक जोरदार धमाका होगा, क्योंकि जिन खुद भी आग से बना हुआ है। जब पानी आ जाएगा आग में तब भी आग बढ़ेगी, और जब आग जाएगी आग में तो तब भी आग बढ़ेगी। सोचें जो पहले ही बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली है उसमें इंसान और जिन्नात के जाने के बाद अल्लाह ने कहा ना, इसमें आता ना कि इंसान और जिन्नात ईंधन है जहन्नुम का, इनसे आग और बढ़ेगी, कम नहीं होगी, इनसे आग और बढ़ेगी। तो जिन्नात और इंसान जब जाएंगे तो इनसे आग मजीद बढ़ जाएगी। और जब आग बढ़ेगी, जब दोनों का पॉइंट मिलेगा, इंसानों से भी आग बढ़ रही है और जिन्नात से भी बढ़ रही है, तो दोनों जब मिलेंगे तो मिलके एक जोरदार धमाका होगा जहन्नुम के अंदर, जो आग को मजीद इंटेंस कर देगा, मजीद इंटेंस कर देगा। ये मतलब है असाईर का। असाईर में आपको मैंने बताया ना कि ऐसा शोला
جو مسلسل بڑھ رہا ہے، اور وہ مسلسل کیسے بڑھ رہا ہے کہ انسان اور جب جنات اس میں ڈالے جائیں گے تو ایک زوردار دھماکہ ہوگا، اور وہ دھماکہ اس آگ کو مزید انٹینس کر دے گا۔ یہ مطلب ہے السعیر کا۔